friends, I am Swarnika Verma, UGC NET educator for my study classes. Today we are going to do some questions based on marked price, MP, discount, D, successor discount in mathematical reasoning and aptitude, general paper 1. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLV classes. If you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe. And for subscription, hit the bell icon, then you will get notification related to my latest video. And lastly, follow me on Instagram. Now guys, come to the topic. Marked price MP. The price which is marked on an article is known as marked price of the article. It means अगर कोई article है उस पे कोई price लिखा है तो वो कौन सा price होगा, आपका marked price होगा. Okay? After that discount क्या है देखते हैं. While selling an article, when a shopkeeper sells the article less than the MP or marked price or gives some concession, then this concession is known as discount. इट मीन्स अगर कोई शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है आर्टिकल को लेस देन दी एमपी, अगर मान लीजिए ₹50 है आपका एमपी, ओके, और शॉपकीपर सेल्स कर रहा है इसको 45 में, ओके, ₹45 में. सो हियर एसपी लेस देन एमपी हो रहा है. सो यहाँ पर जितना भी डिस्काउंट है ₹5 का देख रहे हैं कि डिफरेंस आ रहा है, तो ये जो ₹5 है वो क्या हो जाएगा, आपका डिस्काउंट हो जाएगा. ओके, डिस्काउंट विल बी ₹5 here. So, while selling an article, when a shopkeeper sells the article less than the MP or gives some concession, then this concession is known as discount. यानी शॉपकीपर ने ₹50 के सामान को 45 में बेचा है. यहाँ पर कितने रुपए का उसने कंसेशन दिया है, ₹5 का. सो ये इसका डिस्काउंट हो जाएगा. ओके, here we can see successive discount. If two successive discounts of R1% and R2% is given on an article, then net discount is equal to R1 plus R2 minus R1 into R2 divided by 100. Okay? अगर दो successive discount है R1% का और R2% का कोई भी आर्टिकल में, सो वो उसका नेट डिस्काउंट क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस R1 मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइडेड बाई 100. ये आपका सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होगा. कब होगा ये फॉर्मूला, जब कोई भी आर्टिकल के लिए दो सक्सेसिव डिस्काउंट क्वेश्चन में गिवन होंगे. सो उस टाइम आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा वहां पर. नाउ गाइस, कम टू द क्वेश्चंस. The marked price of an article is ₹500. If it is sold for ₹400, find the rate of discount. Okay? So here we need to find the rate of discount. Okay? ये निकालना है. क्वेश्चंस में गिवन क्या है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500. इट मीन्स अगर एक कोई आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस कितना गिवन है, 500. आफ्टर दैट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹400, अगर उस आर्टिकल को 400 में सोल्ड कर मतलब बेच दिया जाता है तो क्या आएगा, डिस्काउंट देखते हैं. डिस्काउंट इज इक्वल टू MP माइनस SP. इट मीन्स मार्क प्राइस माइनस SP सेलिंग प्राइस. So 500 minus 400 is equal to how much rupees, 100. आपका डिस्काउंट आ रहा है, D is equal to 100. So here we need to find the rate of discount, यानी परसेंट में निकालना है. So rate of discount, discount percent is equal to discount upon MP into 100. डिस्काउंट कितना है 100, MP कितना गिवन है 500, 100 0 0 0 0 20. सो डिस्काउंट परसेंट आपका आ जाएगा 20. सो रेट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 20% विल बी योर आंसर. ओके, नाउ गाइस, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ टू consecutive discounts of 10% and 15%. Here two consecutive discounts given at 10% and 15%. Okay, we need to find the equivalent discount. यहाँ पर equivalent discount निकालना है. So for this we need to put the formula of successive discount. It means here R1 is equal to 10% and R2 is equal to 15%. So according to formula of successive discount, net discount is equal to R1 plus
R2 minus R1 R2 upon 100. Okay, so R1 कितना given है 10%, right here 10 plus R2 15 minus 10 into 15 upon 100. Okay, 25 ऐड करेंगे माइनस 150 अपॉन 100 2 3. ओके, सो 25 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 23.5% आ जाएगा आपका नेट डिस्काउंट. So equivalent discount will be 23.5%. Answer. Now guys, come to the next question. An item whose MP is rupees 16,000 is sold for rupees 11,400 after two successive discounts. If the first discount be 5%, find the second discount. So here we need to find the second discount of an article. Okay. So आर्टिकल का एमपी कितना गिवन है, एक आइटम है उसका एमपी कितना गिवन है 16,000. ओके, और उसको बेचा कितने में किया है 11,400 में. आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद उस आइटम को 11,400 में बेचा गया है. उस दो सक्सेसिव डिस्काउंट में एक सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, इट मीन्स R1 कितना है आपका 5% और R2 यहाँ पर नहीं गिवन है. ओके, हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है. सो एमपी इक्वल टू रुपीज 16,000, एसपी इक्वल टू रुपीज 11,400. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू पुट द फॉर्मूला ऑफ एसपी. एसपी इक्वल टू एमपी 100 माइनस R1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस R2 अपॉन 100. ओके, ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. सो हियर एमपी इक्वल टू 16,000 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 5% अपॉन 100 अपॉन 100 माइनस R2 अपॉन 100. R2 की वैल्यू नहीं मालूम है. ओके, और एसपी कितना दिया है यहाँ पर 11,400. सो 11,400 अपॉन 16,000. ओके, इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 95 अपॉन 100 माइनस R2 अपॉन 100. सो 114 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 95. ऐसा क्यों करेंगे, ये वैल्यू को अगर इक्वल टू के इस साइड लाना है तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर. इट मीन्स कि अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे. ओके, आफ्टर दैट 100 माइनस R2 अपॉन 100. सो इसको कट करेंगे 2 के टेबल में. आफ्टर दैट 4 बार में ये आ जाएगा 57. ओके, 1 बार में और ये 19 3 आपका आ जाएगा 57. सो 3/4 इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस R2 अपॉन 100. ओके, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे यहाँ पे. ओके, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 300 अपॉन 4 इक्वल टू 100 माइनस R2 अपॉन माइनस R2 लिखेंगे. उसके बाद क्या करना है हम लोगों को 300, ये 100 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस R2 यहाँ पर पहले से है. ओके, सो एलसीएम लेंगे 3000 माइनस 400 इक्वल टू माइनस R2. ओके, सो माइनस 100 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस R2, माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 25. सो R2 इक्वल टू 25% आंसर. सो क्वेश्चन में गिवन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जिसमें से R1 आपका 5% गिवन था, पहले से हम लोगों को फाइंड करना था
R2 और R2 आपका क्या हो गया है 25%. So write here 25%. Your answer will be 25%. Okay. Now guys, come to the next question. Find the difference between two successive discount of 36% and 4% on 1000 and the discount of 40% on the same amount. So here we need to find the differences between two successive discounts of 36% and 4% on 1000. यानी पहले क्या करेंगे 1000 पे 36% और 4% का निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें से क्या करना है 40% ऑफ 1000 जो आएगा, यहाँ पर लिखा है सेम अमाउंट. सो 40% ऑफ 1000 में से ये सारे जो भी डिस्काउंट्स गिवन है उसको डिडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू सक्सेसिव अमाउंट. ओके. सो फॉर दैट वी नीड टू पुट द फॉर्मूला ऑफ नेट डिस्काउंट. नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस R1 R2 अपॉन 100. ओके. सो R1 कितना गिवन है 10%, राइट हियर 10 प्लस R2 15 माइनस 10 इंटू 15 अपॉन 100. ओके. 25 ऐड करेंगे माइनस 150 अपॉन 100 2 3. ओके. सो 25 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 23.5% आ जाएगा आपका नेट डिस्काउंट. सो इक्विवेलेंट डिस्काउंट विल बी 23.5%. आंसर. ओके. An item whose MP is rupees 16,000 is sold for rupees 11,400 after two successive discounts. If the first discount be 5%, find the second discount. So here we need to find the second discount of an article. Okay. So article का MP कितना given है, एक item है उसका MP कितना given है 16,000. Okay. और उसको बेचा कितने में किया है 11,400 में. आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद उस आइटम को 11,400 में बेचा गया है. उस दो सक्सेसिव डिस्काउंट में एक सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है, इट मीन्स R1 कितना है आपका 5% और R2 यहाँ पर नहीं गिवन है. ओके. हम लोगों को इसको फाइंड आउट करना है. सो MP इक्वल टू रुपीज 16,000, SP इक्वल टू रुपीज 11,400. Okay. So according to question we need to put the formula of SP. SP is equal to MP 100 minus R1 upon 100 multiply by 100 minus R2 upon 100. ओके. ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा. So here MP is equal to 16,000 multiply by 100 minus 5% upon 100 upon 100 minus R2 upon 100. R2 की वैल्यू नहीं मालूम है. ओके. और SP कितना दिया है यहाँ पर 11,400. सो 11,400 अपॉन 16,000. ओके. इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा 95 अपॉन 100 माइनस R2 अपॉन 100. सो 114 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 95. ऐसा क्यों करेंगे, ये वैल्यू को अगर इक्वल टू के इस साइड लाना है तो इसमें क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर. इट मीन्स कि अपने प्लेस को इंटरचेंज करेंगे. ओके. आफ्टर दैट 100 माइनस R2 अपॉन 100. सो इसको कट करेंगे 2 के टेबल में. आफ्टर दैट 4 बार में ये आ जाएगा 57. ओके. 1 बार में और ये 19 3 आपका आ जाएगा 57. सो 3/4 इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस R2 अपॉन 100. ओके. सो
3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे यहाँ पे, ओके। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 300/4 इक्वल टू 100 माइनस R2 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, 300 ये 100 यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस R2 यहाँ पर पहले से है, ओके। सो एलसीएम लेंगे 3000 माइनस 400 इक्वल टू माइनस R2, ओके। सो माइनस 100/4 इक्वल टू माइनस R2, माइनस माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा 25। सो R2 इक्वल टू 25% आंसर। सो क्वेश्चन में गिवन है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें से R1 आपका 5% गिवन था पहले से, हम लोगों को फाइंड करना था R2, और R2 आपका क्या हो गया है 25%। सो राइट हियर 25%, योर आंसर विल बी 25%, ओके। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the difference between two successive discount of 36% and 4% on 1000 and the discount of 40% on the same amount. So here we need to find the differences between two successive discounts of 36% and 4% on 1000. यानी पहले क्या करेंगे, 1000 पे 36% और 4% का निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें से क्या करना है 40% ऑफ 1000 जो आएगा, यहाँ पर लिखा है सेम अमाउंट। सो 40% ऑफ 1000 में से ये सारे जो भी डिस्काउंट्स गिवन है उसको डिडक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू सक्सेसिव अमाउंट, ओके। So for that we need to put the formula of net discount. Net discount is equal to R1 plus R2 minus R1 R2 upon 100, okay. So here R1 कितना गिवन है, R1 is equal to 36%, R2 is equal to 4%, okay. Is equal to R1 की वैल्यू 36%, right here 36% plus R2 4 minus 36 multiplied by 4 upon 100, okay. 36 plus 4 40 minus इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 144 upon 100 आ जाएगा, ओके। इसको 50 72 2 की टेबल से कट गया 25, आपका ये आ जाएगा 36। सो 40 माइनस 1.44, सो इन दोनों को माइनस करेंगे 40 माइनस 1.44, सो 38.56 आपका आ जाएगा नेट डिस्काउंट, इट मीन्स परसेंट, ओके। आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑफ 1000, सेम अमाउंट दिया है यहाँ पर, सो 40% ऑफ 1000 निकालना है, ओके। और वो आ जाएगा तो उस वैल्यू को इस वैल्यू से डिडक्ट करेंगे, सो आपका सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा, ओके। नेट डिस्काउंट कितना आया है, नेट डिस्काउंट इज इक्वल टू 38.56%. सो आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द डिफरेंसेस बिटवीन सक्सेसिव डिस्काउंट, ओके। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द डिस्काउंट ऑफ 40% ऑफ सेम अमाउंट, इट मीन्स 1000, ओके। सो नाउ difference between two discount is equal to 40% of 1000 यहाँ पर दिया है, माइनस करेंगे नेट डिस्काउंट 40 into 1000 upon 100 माइनस नेट डिस्काउंट कितना गिवन है 38.56 upon 100 into 1000, okay. So 400 minus 38.56, so यहाँ पर हम माइनस करेंगे 400 माइनस 385.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा रुपीज 14.40। कैसे आता है माइनस करके देख लेते हैं 38.6 4 941, ओके। सो 14.40 विल बी योर आंसर। जीरो नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा।